रहा था कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो आपकी पार्लियामेंट्री फोरम के लोग हैं, उनका भी मैं एक परिचय दूं विद योर काइंड परमिशन प्रेसिडेंट, इफ आई कैन जस्ट शेयर। तो भी ब्रीफ रखूंगा सर मैं। अच्छा जी, नहीं मैं ब्रीफ रखूंगा माननीय मंत्री जी की नॉलेज के लिए। प्रदीप मुल्तानी जी, he is our president as I have shared. He is the chairman of Multani Pharmaceuticals, an eminent industrialist and a renowned name in the field of traditional medicine. Mr. Multani is the chairman, as I have said, of the Multani Pharmaceuticals Limited, having an enriched experience of more than 40 years in the manufacturing of Ayurvedic and Unani medicines and products. And he is holding the position of chairman of Multani Pharmaceuticals for the last 32 years. We have our senior vice president, Mr. Saket Dalmia sir. Mani Mantri ji, Mr. Saket Dalmia, young industrialist. He is the managing director of PG Industry Limited, a leading manufacturer of Indian marble flooring and facade solutions across India under the brand name called Marble City. And Marble City is headquartered in Delhi. Let me share it with you that the company has several joint ventures with the cutting edge global facade products and felicitated as one of the 100 fastest growing export houses from India by the late Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee ji. हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री संजीव अग्रवाल जी को कहीं जाना पड़ गया, वो नहीं है आज। हम अभी मुलाकात उनसे हुई थी, बट ही हैज गॉन फॉर अ मीटिंग. He is the brain behind establishing the group diversification and growth over the years. Under his leadership and guidance, the MMG Group has achieved top position in its core business operations of soft drinks and oil and gas services. माननीय मंत्री जी, आज हमारे संग मिस्टर तथागत सतपति जी भी जुड़े हुए हैं. मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि तथागत सतपति जी was a member of the 12th, 14th, 15th and 16th Lok Sabha of India. He represented the Dhankal constituency of Odisha and was re-elected for the 4th time in 2014. He was a member of Biju Janata Dal political party and the party's chief whip in the Lok Sabha, and he took voluntary retirement from politics in March 2019. हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं तथागत सतपति जी का. हमारे बीच श्री अनिल चौधरी जी हैं, इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. ही इज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड ही इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ मिनरल एंड मेटल कमेटी. हमारे बीच वर्चुअली जुड़े हैं श्री नवीन जिंदल जी. ही डज नॉट रिक्वायर एनी इंट्रोडक्शन. ही इज द क्रूसेडर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग एंड एडवोकेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स. सो ही इज ज्वाइनिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका. हमारे बीच हमारे पार्लियामेंट्री फोरम के चेयरमैन श्री राकेश गुप्ता जी हैं. इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ साधना ग्रुप. Entered the advertising arena in 1977, ever since the inception of Sadhana Group. So all this, as I have said, this program is being aired live on all the 8 TV channels. We have Shri Pradeep Agrawal ji, and he is the son of late Shri Murli Manohar Agrawal ji, ex-member of Parliament, and he has been at the helm of the affair since 1991, and he has the knack of visualizing and choosing business opportunities having great growth potential. He is also representing Coca-Cola in India, and he is also into the business of liquors over here in India. So as I have said, we have also Mr. Ravi Gupta. Ravi Gupta ji is the co-chair of Mineral and Metal Committee, and he is a big steel trading company over here in India, and he is also into the power sector. So ladies and gentlemen, with this note now, may I request अब मैं श्री राकेश गुप्ता जी, जो हमारे अध्यक्ष है संसदीय मंच के पीएचडी सीसीआई, से अनुरोध करता हूं कि आप अपना उद्बोधन सर आप हमें दें और अनुग्रहित करें. थैंक यू राकेश सर, एंड द स्टेज इज योर्स. Honorable Minister of State for Steel and Rural Development, Shri Pavan Singh Kulste ji, dignitaries on the dais, members and guests. It gives me immense pleasure to welcome you all on this occasion. In fact, this is organized by our Parliamentary Forum Committee. हमारी इसी साल जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, मेरे को सौभाग्य मिला है, हमारे प्रदीप मुल्तानी जी ने मुझे इसकी चेयरमैनशिप के लिए इनवाइट किया, और इस कमेटी के अंतर्गत हम समय समय पर कुछ मिनिस्टर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, कुछ इंडस्ट्री लीडर्स को इनवाइट करेंगे ताकि किसी भी इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सबके सामने ला सकें और उसका क्या हल हो सकता है और मेंबर्स को उसके कारण से क्या फायदे हो सकते हैं, उस सबको हाईलाइट करने के लिए. मुल्तानी जी का आदेश हुआ था कि इन सारे प्रोग्राम्स को चैनल्स पर हम लाइव भी दिखाएं ताकि
करोड़ों लोगों तक हमारे व्यूज पहुंच सके, तो वो भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज का हमारा ये सेशन स्टील इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड है और हमारा सौभाग्य है कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी हमारे बीच में हैं, जो स्टील इंडस्ट्रीज की नब्ज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आज स्टील इंडस्ट्री एक ऐसे दौर से निकल रही है जहां पर स्टील के रेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वैसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्टील इंडस्ट्री वास्तव में देश की इकोनॉमी की बैकबोन है। इसके कारण से बाकी उद्योगों पर भी सीधा सीधा असर पड़ता है। कोरोना के दिनों में जब सब इंडस्ट्रीज हर तरह के डाउनफॉल की तरफ थी, तब डेफिनेटली स्टील इंडस्ट्री को भी कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा। उसका एक हल ये निकाला गया कि स्टील को या आयरन ओर को एक्सपोर्ट शुरू करते। एक्सपोर्ट शुरू हुआ, लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल हो गया उसके बाद भी एक्सपोर्ट चलता रहा और आज हालत ये है कि मोर देन 20% ऑफ द प्रोडक्शन इज बीइंग एक्सपोर्टेड। इस एक्सपोर्ट के कारण से जो इंडियन इंडस्ट्री है उसको बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्टील के रेट बढ़ रहे हैं, शॉर्टेज हो रही है और उसका फायदा केवल कुछ चंद लोगों को मिल रहा है। हमारा पीएचडी चैम्बर इज डेडिकेटेड फॉर वेलफेयर एंड बेनिफिट ऑफ एमएसएमई सेक्टर। मंत्री जी, देश में जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है, लोगों को रोजगार देने की दृष्टि से भी और रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन अगर हम एमएसएमई सेक्टर को ही मार देंगे, केवल देश की इकोनॉमी कुछ चंद बड़े इंडस्ट्रीज के हाथ में आ जाएगी, तो डेफिनेटली हम ना तो सबको साथ लेकर चलने की और ना समग्र विकास की जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको हम पूरा कर पाएंगे। इसलिए एमएसएमई सेक्टर को बचाए रखना बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज स्टील इंडस्ट्री में जितना आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है या पूरी इंडस्ट्री कुछ चंद हाथों में है, उसके कारण से वो अपने फायदे के लिए जब चाहे रेट बढ़ाते हैं, जब चाहे रेट घटाते हैं। बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो हो रहा है, यदि उसको रोका जाए या उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाए तो उसके कारण से सरकार को भी करोड़ों का रेवेन्यू मिलेगा और यहाँ की इंडस्ट्रीज को भी हम फेल होने से बचा सकेंगे। आज हालत ये है कि हजारों करोड़ का भी, कुछ दिन पहले मैं एक स्टील कंपनी की, बहुत बड़ी कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट देख रहा था। 15,000 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15,000 करोड़ का एक क्वार्टर का था। आखिर ये पैसा, इतना प्रॉफिट कहां से आ जाता है? क्योंकि उनके हाथ में पूरी स्टील इंडस्ट्री है, वो जब चाहे रेट बढ़ा देते हैं और उसके कारण से छोटी इंडस्ट्रीज को नुकसान होता है। अगर हम आयरन ओर को ही देखें, मटेरियल यहाँ का, जमीन यहाँ की, पैसा यहाँ का, बैंकों से पैसा उधार लिया हुआ है, मैन पावर यहाँ की, सब कुछ यहाँ का यूज करके ये बड़ी कंपनियां पैसा कमाती हैं और वो पैसा कहीं ना कहीं बाहर चला जाता है और हमारी इंडियन इंडस्ट्री इसको देखती रह जाती है। ये एक बहुत बड़ा हमारे साथ में ड्रॉबैक है, जबकि आपके होते हुए सर ये सब रुके तो देश को निश्चित रूप से फायदा होगा। स्टील कंजम्पशन में अगर हम देखें तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का स्टील कंजम्पशन में, लेकिन तो भी यहाँ पर प्रति व्यक्ति 75 किलोग्राम की खपत है, जबकि ग्लोबल अगर हम एवरेज निकालें तो 225 केजी की है। इतनी बड़ी, जबकि इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है। एनएसपी जो नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 में लागू की गई थी, उसमें स्टील इंडस्ट्री को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए बहुत जोर दिया गया था, उसका एक रोड मैप भी बनाया गया था। लेकिन क्योंकि पूरी इंडस्ट्री चंद हाथों में है, इसलिए उसको ना तो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, ना ही एमएसएमई के हितों को उसमें कहीं भी ध्यान दिया गया। 20-25 हजार करोड़ की ये प्रॉफिट इन कंपनियों का होता है और 40% तक प्रॉफिट रहता है, क्योंकि सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो स्टील बैकबोन है हमारे कंट्री की, जो आज कई तरह से स्ट्रगल कर रही है, बहुत हाई इंपोर्ट कॉस्ट है, लॉजिस्टिक्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, पावर कॉस्ट यहाँ पर अगर हम दूसरे देशों के मुकाबले में जब तुलना करते हैं तो बहुत ज्यादा है। बैंक का लैंडिंग रेट हम सबको मालूम है, फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, ड्यूटीज टैक्सेस बहुत हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज भी बहुत सारे रहते हैं।
इन सब के कारण से इंडस्ट्रीज को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपका इसमें अगर जरा सा भी इंटरफेयर होगा और आप अगर एमएसएमई को सेफ गार्ड करते हुए इस पॉलिसीज को कुछ चेंज करेंगे, उसमें जहां जहां परिवर्तन की आवश्यकता है अगर आप ध्यान देंगे, तो आई एम श्योर एमएसएमई को बहुत लाभ होगा। और यही हमारा पीएचडी चैम्बर का उद्देश्य रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। धन्यवाद राकेश जी, हमारे चेयरमैन संसदीय मंच पीएचडी सीसीआई से। इससे पहले कि मैं अनिल चौधरी जी को रिक्वेस्ट करूं स्टील और इस एलाइड प्रोडक्ट्स के बारे में और अपने उद्बोधन के लिए, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी रूरल डेवलपमेंट के भी स्टेट मिनिस्टर हैं भारत सरकार। तो आज हम बात जो है रूरल डेवलपमेंट की भी करेंगे। और हमारे बीच हमारे इमीडिएट फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं संजय अग्रवाल जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। हमारे पास बुल्गारिया से हमारे इलिया डिकॉव डिप्टी एम्बेसडर, वो भी आए हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अब मैं श्री प्रदीप अग्रवाल, को चेयरमैन पार्लियामेंट्री फोरम पीएचडी सीसीआई, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना स्पेशल एड्रेस। मुख्य अतिथि श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, माननीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री प्रदीप मुल्तानी अध्यक्ष पीएचडी सीसीआई, श्री साकेत डालमिया वरिष्ठ उपाध्यक्ष पीएचडी सीसीआई, श्री अनिल चौधरी अध्यक्ष खनिज एवं धातु समिति पीएचडी सीसीआई, श्री राकेश गुप्ता अध्यक्ष संसदीय मंच पीएचडी सीसीआई, श्री नवीन जिंदल सह अध्यक्ष खनिज और धातु समिति पीएचडी सीसीआई, श्री रवि गुप्ता सह अध्यक्ष खनिज और धातु समिति पीएचडी सीसीआई, श्री सौरभ सान्याल महासचिव पीएचडी सीसीआई और डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव जी सहायक महासचिव पीएचडी सीसीआई, प्रबंध समिति के सदस्य और सम्मानित प्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आज के इस विशेष संवाद सत्र में श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, माननीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार को हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूँ। हम सभी आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। धातुएं औद्योगिकरण के प्रमुख चालकों में से एक रही हैं। धातुओं में स्टील ने ऐतिहासिक रूप से एक प्रमुख स्थान हासिल किया है। कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पाद में के रूप में स्टील के उत्पादन और खपत को व्यापक रूप से आर्थिक प्रगति के संकेतक के रूप में माना जाता रहा है। मेक इन इंडिया अभियान, स्मार्ट शहरों, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे सुधारों तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति के तहत अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के कारण भारत में धातु और खनन क्षेत्र में अलग कुछ वर्षों में एक बड़ा सुधार देखने की उम्मीद है। साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास में वृद्धि और मोटर वाहन उत्पादन में वृद्धि से भारत में धातु तथा खनन क्षेत्र में विकास गति मिल रही है। हालांकि ये क्षेत्र वैश्विक संकट कोविड-19 से अत्यंत प्रभावित हुआ है, लेकिन अब ये समान होने की धीमी प्रक्रिया में है। जैसे कि भारत मेक इन इंडिया जैसी नीतिगत पहलों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर उत्पादन केंद्र बनने की दिशा में काम कर रहा है, अतः यह एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है और उत्पादन पर अनेक क्षेत्रों की निर्भरता बढ़ेगी। मैं इस सत्र में पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। हम भविष्य में पीएचडी सीसीआई के संसदीय मंच के तहत इस तरह के सार्थक सत्र आयोजित करना जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद प्रदीप जी। और जैसा कि आपने रिक्वेस्ट भी किया कि आपका जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो मध्य प्रदेश में है, माननीय मंत्री जी भी मध्य प्रदेश से हैं, सो इट वुड बी अ नाइस इंटरेक्शन आई होप। अब मैं श्री अनिल चौधरी जी, अध्यक्ष खनिज और धातु समिति पीएचडी सीसीआई से मैं आग्रह करता हूं कि आज के सत्र के लिए विषय प्रस्तुत करने का मैं अनुरोध करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर योगेश जी। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करना चाहूंगा मिनरल्स और मेटल कमेटी के बिहाफ पे और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बिहाफ पे, और आप सब जो कि माने हुए लोग हैं, हमारे आदरणीय श्री प्रदीप मुल्तानी जी जो कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं इस वर्ष के लिए, श्री साकेत डालमिया जी, श्री राकेश गुप्ता जी, प्रदीप अग्रवाल जी, रवि गुप्ता जी, नवीन जिंदल जी जो कि हमारे साथ वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हैं, और योगेश श्रीवास्तव जी, और हमारे यहाँ संजय अग्रवाल जी भी हैं जो कि हमारे पास्ट प्रेसिडेंट हैं।
आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबको मैं नमस्कार करता हूं। इसके अलावा जितने भी यहाँ गणमान्य व्यक्ति प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा और पीएचडी चैम्बर का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें इस अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट किया कि हम मंत्री जी से रूबरू होकर यहाँ बात कर सकें। ऐसा बहुत कम मौका मिलता है कि मंत्री जी जो कि इस्पात मंत्रालय के लिए प्रभारी हैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हमें जो भी इश्यूज हैं उनके ऊपर हमें वो ज्ञान देंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक्शन लेना है और उसके बारे में भी वो हमें बताएंगे कि गवर्नमेंट का क्या दृष्टिकोण है। खासतौर पे जो स्टील में हमें आत्मनिर्भर बनना है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के जरिए या फिर गति शक्ति या फिर जो स्टील कंजम्पशन हमारी कंट्री में जो कि पर कैपिटा देखें, जैसे अभी मेंशन किया राकेश गुप्ता जी ने कि हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन जो है अभी भी वो 1/4 है, जो कि वर्ल्ड एवरेज का। अगर हम अपने आप को चाइना से कंपेयर करते हैं तो ये सिर्फ उसका 10% है। तो इसको किस तरह से हमें बढ़ाना है, उसके लिए हमें मंत्री जी के विचार सुनने को मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मेटल और मिनरल सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं पिछले 5 और 6 साल में। जैसे MMDR एक्ट में 2015 से चेंजेस होने शुरू हुई तो हमें लगा कि स्टील सेक्टर का लिबरलाइजेशन तो 1991 में हो गया था, जबकि हमने इसको लेसन से निकाल के ओपन रूप में जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहे उसको अपॉर्चुनिटी दी थी। लेकिन जो माइनिंग सेक्टर का जो अभी लिबरलाइजेशन हुआ है वो 2015 से स्टार्ट हुआ है और अभी जितनी भी माइंस हैं वो सबके लिए अवेलेबल हैं, भले ही ऑप्शन के रूप में मिलेंगी। वो भी एक डिबेटेबल इशू है, उसके ऊपर भी हम अगर समय मिला तो मंत्री जी से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि उठाए गए हैं कि MSME सेक्टर को हमको किस तरह से रिलीफ देना है और किस तरह से स्टील के प्राइसेस पिछले कुछ सालों में बढ़ रहे हैं और किस तरह से स्टील कंपनीज प्रॉफिट के बजाय प्रॉफिटेरिंग कर रही है। ये भी एक बहुत डिबेटेबल इश्यू है क्योंकि स्टील कंपनी का एक अपना दृष्टिकोण है इसके प्रति और जो यूजर्स हैं उनका अपना दृष्टिकोण है। तो दोनों में बैठ के ये चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह से हम इन प्राइसेस को एक अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। और मैं तो एक ये भी सजेशन देना चाहूंगा कि जो भी हम सेक्टर को लिबरलाइज करते हैं या स्वतंत्रीकरण करते हैं उसके साथ साथ हम एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर भी अपॉइंट करते हैं। तो क्यों ना स्टील सेक्टर के लिए और माइनिंग सेक्टर के लिए भी एक रेगुलेटर होना चाहिए हमारी कंट्री में, जिसकी की जो डिमांड सप्लाई और इसके अलावा प्राइसेस और जो भी हमारा उससे मिले जुले जो पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटर क्यों नहीं होना चाहिए। ये जो हमारी मिनरल्स एंड मेटल कमेटी है ये एक बिल्कुल नई कमेटी है, 2019 में बनी थी। जब मैं सेल चेयरमैन था तो हमने सेल को पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंडक्ट किया था। उसके साथ साथ हमने इस मिनरल्स एंड मेटल कमेटी को भी बनाया था और मिनरल्स एंड मेटल कमेटी ने पिछले साल में, मैं उसका क्रेडिट योगेश जी को भी देना चाहूंगा बहुत हद तक, कि काफी सारे हमने वेबिनार्स किए और एक बहुत योजनाबद्ध तरीके के जरिए हमने जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडस्ट्री से जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको पास करना शुरू किया। हमने जो 3 माइनिंग समिट किए, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ माइनिंग समिट, उसका हमको एक मैं कहूंगा बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मार्केट से। हाँ, ये बात हो रही है कि उसमें जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से है वो पार्टिसिपेशन नहीं मिल पाया जो कि होना चाहिए था। मंत्री जी को जैसे मालूम है कि अभी मेटल सेक्टर जो है और मिनरल सेक्टर जो है बहुत ही अच्छा कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात हुई, अपना राकेश गुप्ता जी ने उठाया कि किस तरह से स्टील कंपनीज प्रॉफिट कर रही हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके बहुत सारे इश्यूज भी हैं जिनके के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। खासतौर पे जैसा आप सबको मालूम है कि एक नेशनल स्टील पॉलिसी आई थी 2017 में, उसके तहत जो हमारी कंट्री का प्रोडक्शन है वो 300 मिलियन टन तक जाना है। उस 300 मिलियन टन को अचीव करने के लिए 2030-31 तक हमारे सामने क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं और उनको मिलजुल कर हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कोल की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ेगी, आयरन ओर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और उसके साथ साथ हमको जो 10 लाख करोड़ के फाइनेंसेस चाहिए उस 300 मिलियन टन को इंप्लीमेंट करने के लिए अभी हमारी कैपेसिटी जो है 145 मिलियन टन के आसपास है।
145 मिलियन टन से अगर हमें 300 मिलियन टन तक जाना है तो लगभग 10 लाख करोड़ के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। वो रिसोर्सेज कहां से आएंगे, किस तरह से आएंगे? एक स्टील फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लेके चर्चा हुई थी 2015 में, लेकिन वो कहीं गवर्नमेंट की फाइलों में दब के रह गया, उसमें रिकमेंडेशंस भी गई थी। तो उसको भी मैं चाहूंगा कि मंत्री जी को अगर हम रिवाइव कर सकते हैं, एक डिस्कशन होना चाहिए उसके ऊपर। कल माननीय फाइनेंस मिनिस्टर भी उसके ऊपर एक मीटिंग ले रही हैं कि इंडस्ट्री को किस तरह से बैंकिंग सेक्टर से एक योजनाबद्ध तरीके से क्रेडिट प्रदान किया जाए, उसके ऊपर कल एक मीटिंग है, तो उसमें भी वो चर्चा का विषय रहेगा। और मैंने भी उसने अपने कमेंट्स भेजे हैं कि किस तरीके से पर्टिकुलरली जो स्टील सेक्टर है या मेटल सेक्टर है उसको हम किस तरह से फंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। रेगुलेटर की बात मैंने बताई, ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से विचारणीय इशू है जिसको कि गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लिबरलाइजेशन की तरफ जाते हैं वैसे वैसे एक जैसे गुप्ता जी ने बताया कि प्रॉफिटियरिंग का एक जो अंदेशा है वो बढ़ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए किस तरह से हमको रेगुलेटर अपॉइंट करना है और उसको किस तरीके से प्रॉफिट को हमको रेगुलेट करना है ताकि जो हमारे एमएसएमई यूनिट्स हैं उनको उसका ठीक तरीके से बेनिफिट मिल सके। इस देश को स्टील में आत्मनिर्भर बनना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम दी है। पीएलआई स्कीम को एक्सपीडिएट करने की जरूरत है। पॉलिसी ऑलरेडी आ गई है, गाइडलाइंस ऑलरेडी आ चुकी हैं, लेकिन उसके लिए जो एक काम होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में, जो प्रोसेसिंग होनी चाहिए, जो एप्लीकेशन आनी चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, वो काम शुरू नहीं हुआ। और 22-23 जो है उसका पहला साल होगा, तो उसके लिए हमको अभी से काम शुरू करना है। और स्टील जो पहले हमने सोचा था एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर में होगा, वो अभी हमको पता लगा कि स्टील स्ट्रेटेजिक सेक्टर में नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में स्टील को रखना चाहिए, क्योंकि एक स्टील ही ऐसा मेटल है जो कि टोटल मेटल सेक्टर का 95% कॉन्स्टिट्यूट करता है, और किसी भी कंट्री के लिए जो स्टील इंडस्ट्री है वो उसकी बैकबोन माना जाता है। तो इसको हमको स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रखना चाहिए। इसके अलावा कंट्री में अभी तो स्टील कंजम्पशन काफी अच्छा है, स्टील मिल नहीं रहा, बट वो भी इसका रीजन ये है कि हमारा जो 25% स्टील है आज की डेट में वो एक्सपोर्ट हो जाता है, और जो कंट्री में अवेलेबल है वो 75% स्टील रहता है। इसकी वजह से स्टील प्राइसेस हाई हैं, स्टील की अवेलेबिलिटी लो है। बट आने वाले समय में जब हम 300 मिलियन टन पहुंचेंगे, जहां जाकर हमको 250 मिलियन टन जो है फिनिश स्टील मिलेगा, उसकी मार्केटिंग किस तरह से होगी और उसको कौन कौन से सेक्टर कितना यूज करेंगे और स्टील कंजम्पशन को किस तरह से बढ़ाना है, खासतौर पे जो हमारे अनकन्वेंशनल सेक्टर्स हैं उसमें किस तरीके से बढ़ाना है हमें स्टील कंजम्पशन को, उसके ऊपर भी एक चर्चा होनी चाहिए। एंड जो अभी आपको मालूम है मिनरल सेक्टर में गवर्नमेंट ने ऑप्शन की एक मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, तो उसमें जो मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर विचार होना चाहिए, क्योंकि जो अभी जो मौजूदा स्थिति है उसके हिसाब से ये ऑप्शन जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा। काफी माइन सरेंडर हुई है, और वही एक रीजन था कि लास्ट ईयर के अंदर हमारे आयरन और प्रोडक्शन में काफी शॉर्टेज रही। खासतौर पे शुरू के कुछ महीनों में 6 से 7 महीनों में लास्ट ईयर नवंबर से प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन अप्रैल से लेके अक्टूबर तक काफी प्रोडक्शन की शॉर्टेज रही और काफी सारी माइंस जो है वो सरेंडर करनी पड़ी, क्योंकि जो ऑप्शन में माइंस ली गई थी उसके अंदर जो प्राइस दिया गया वो इस तरह से प्राइस दिया गया जो कि वर्केबल नहीं था। मेरे हिसाब से जो भी आगे ऑप्शन होनी चाहिए वो रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे होनी चाहिए, जैसा कि और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है, जैसे होटल इंडस्ट्री में या और काफी सारी इंडस्ट्रीज में है कि हम उसको जो परसेंटेज ऑफ प्राइस लेके चलते हैं विस परसेंटेज ऑफ द आईबीएम प्राइस के हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक अनरियलिस्टिक लेवल पे प्राइस चला जाता है जो कि बाद में अनअफोर्डेबल हो जाता है और माइंस को सरेंडर करना पड़ता है और प्रोडक्शन उसमें जो है काफी हैम्पर होता है। और ये जो हाई डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ स्टील है इसको किस तरह से हमें रेगुलेट करना है, किस तरीके से हमें एमएसएमई को समय रहते हुए स्टील पहुंचाना है, इन सब विषयों पे मैं समझता हूं कि चर्चा होनी चाहिए। और मंत्री जी के पास मैं समझता हूं कि रेडीमेड सोल्यूशन तो नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा करने जाएंगे। मेरा उनसे रिक्वेस्ट यही है कि ये जितने भी विषय हम डिस्कस करेंगे उनके जो साथ में प्रोटोकॉल ऑफिसर है, जो पीआरएम है, उसका एक नोट ले सकते हैं और बाद में हम इसको समय मिलने पर दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है कि मंत्री जी से रूबरू होने का और अपने विषयों को उनके सामने रखने का। और आने वाले समय में मैं ये चाहता हूं कि ऐसा ही एक इंटरेक्शन माइंस और कोल मिनिस्टर से भी होना चाहिए, क्योंकि जो मंत्री जी हैं हमारे स्टील मंत्रालय के प्रभारी हैं, स्टील मंत्रालय की प्रॉब्लम्स को तो देख लेंगे, जो माइनिंग से रिलेटेड इश्यूज है हमारी जो कि बहुत ज्यादा है,
और जो हमारी कोल मिनिस्ट्री से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके लिए भी इसी तरह से एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होना चाहिए, ताकि जो हमारे सदस्य हैं अपने विषयों को मंत्री जी के सामने रेज कर सके और उनका कोई सोल्यूशन निकाल सके। अंत में मैं एक बार फिर मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और आज हमारे साथ प्रेजेंट हैं, और मैं आशा करता हूं कि आगे हम फिर मिलेंगे और जो भी आज विषय आज उठेंगे उनके ऊपर हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। श्री अनिल चौधरी जी, आपने अपने भाषण में आपने काफी सारी चीजों का आपने उल्लेख किया, और सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मिनरल्स एंड मेटल कमेटी का जो सेक्रेटेरिएट है बहुत इंस्पायरिंग सेक्रेटेरिएट है अंडर योर लीडरशिप एंड एज डायरेक्टेड बाय अवर प्रेसिडेंट। जैसा कि प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम इसमें बेहतरीन कार्यक्रम करेंगे सर, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबको जोड़ेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे संग तथागत सतपति जी, पूर्व सांसद और संपादक धतरी उड़िया समाचार पत्र से, जो कि हमारे साथ वर्चुअल जुड़े हुए हैं। कैन आई रिक्वेस्ट एडमिन इफ ही कैन अनम्यूट हिमसेल्फ। माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री तथागत सतपति, पूर्व सांसद और संपादक धरित्री उड़िया समाचार पत्र, सभी स्टेज पर वरिष्ठ हमारे कोलीग्स और फेलो चेयर्स एंड को चेयर्स, मैं सर जनरल टर्म में थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूं। हमारा जो पीएचडी चैम्बर है सर 1905 में स्थापित हुआ था, और हम 16 स्टेट्स में हैं और लगभग 1,50,000 कंपनियों को हम पहुंचते हैं। हमारा जो स्लोगन है वो है वॉइस ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और हमारा जो लक्ष्य है, जो विजन है, वो यही है कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, फार्मर्स इनकम को डबल करना है, हमारे को हर भारतीय को घर कोठी हो, पानी हर घर पहुंचे, टॉयलेट हर घर पहुंचे। तो जो भी हमारी को अपने लोगों को नौकरियां देनी है, उनको स्किलिंग करनी है, तो जो भी भारत सरकार के लक्ष्य हैं वही हमारे भी लक्ष्य हैं। हम भी उसमें अपनी आहुति देना चाहते हैं कि जो भी हमारे सरकार ने लक्ष्य रखे हैं उसको हम एज एन इंडस्ट्री उसको कैसे पहुंचे। तो आज का जिस टाइप का प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम सेक्टर वाइज हमारी 60 एक्सपर्ट कमिटीज हैं, तो हम सेक्टर वाइज ये प्रोग्राम करना चाहते हैं ताकि जो भी उस इंडस्ट्री को जो उसके मुद्दे हों और उनको जाके जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए हमारी अलग अलग जो हमारे लोग इंडस्ट्री वाले हैं उसमें कैसे अपना सहयोग दे पाए। सर हमारी इंडस्ट्री सिर्फ ये चाहती है, क्योंकि जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेक्टर है स्टील की वगैरह के ऊपर वो तो हमारे एक्सपर्ट्स अनिल चौधरी जी और हमारे प्रदीप जी और रवि गुप्ता जी ये सब उसके बारे में बात करें इन्होंने। मैं तो सिर्फ सर जनरल टर्म्स में ये कहना चाह रहा हूं कि जी आज हमारी को इंडस्ट्री को सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए। आज हमारा कोई भी एक इंडस्ट्री होता है उसके ऊपर 32 से 35 डिपार्टमेंट होते हैं, तो किसी तरह से अगर जिस तरह से हम फॉरेन इन्वेस्टर्स जब लाना चाहते हैं उनको हम कह रहे हैं 1 विंडो सर्विस आपके लिए हम प्रदान करेंगे, तो उनके लिए तो हम जरूर करें, लेकिन जो भारतीय इंडस्ट्री है उसके लिए भी जाके एक सिंगल विंडो सर्विस होना चाहिए। क्योंकि कल जाके उठा के जो हमारे को इतने सारे डिपार्टमेंट से डील करना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जाके हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बहुत बढ़ जाता है। 32-35 डिपार्टमेंट से डील करने में हमारे को बहुत कष्ट होता है। इसके अलावा हम जो भारतीय इंडस्ट्री चाहती है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अगर आज जैसे हम देख रहे हैं कि भैया इतनी सारी इंटरनेशनल डिमांड हो रही है स्टील की, तो हम क्यों ना इस टाइप की प्रोत्साहन दें अपनी इंडस्ट्री को कि वो जाके देश की भी रिक्वायरमेंट पूरी करें और विदेश को भी एक्सपोर्ट करें। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम जो भारतीय हैं, टैलेंटेड लोग हैं, सिर्फ हमें अगर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कर दें और जिस रेट पर चाइना बेच सकता है उस टाइप के जो भी सुविधा उनकी चाइनीज सरकार उनके इंडस्ट्री को देती है वो भी हमारी भारतीय इंडस्ट्री को मिले, ताकि हम जाके चाइना से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए, अपने देश की भी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए। तो हमारा यही आपसे एक प्रार्थना है, और हम एक जो भी हमारे इंडस्ट्री के इशू हैं और उसके क्या सोल्यूशन है वो हम आपके सामने लिखित रूप में भी पेश करेंगे। तो हमारा यही आपसे अनुरोध है कि जी हमें सहयोग दीजिए, हम मिलकर अपनी सरकार के साथ आगे बढ़ेंगे और देश को आगे लेके चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। प्रेसिडेंट साहब, जैसे कि आप कहते हैं देश बढ़े, समाज बढ़े और पीएचडी चैम्बर बढ़े, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना
सबसे अधिक आवश्यक है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप आए और अपना भाषण आप हमें दें। जहाँ तक लोह अयस्क, बॉक्साइट और कोयले, ये जो नई खनन क्षमताओं को और भविष्य में हम कैसे खोज सकते हैं, इनको विकसित कर सकते हैं, इसके लिए जो हमारे पास अवसर है, आपने देखा होगा कि इस समय अभी कुछ समय जो परिस्थितियां थी, परंतु उसका हमने जितना भरपूर जो हम उपयोग कर सकते, हम क्षमता विकसित कर सकते थे, इस प्रकार का एक प्रयास किए और आज सफलतापूर्वक हम आगे बढ़ रहे हैं इन सारे सेक्टर्स को लेकर के। कई ऐसे प्रयास हुए हैं पिछले दिनों, जहाँ तक है हम भविष्य में भी पीएचडी सीआई के जो हमारे अनेक सदस्य हैं, राष्ट्र हित में अनेक ऐसे बहुमूल्य सुझाव और कई आप लोग बीच बीच में बैठते हैं, विचार विमर्श करने के बाद जो अनुभव आते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इन ऊंचाइयों के साथ हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये प्रयास हम मिलकर के करेंगे। तो मैं ये ऐसा मानता हूँ कि जो चीज़ें आप लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर जैसा महसूस आप लोग करते हैं, ये जरूर हम इसके लिए मेरा ये प्रयास होगा। वो मैं चाहता हूँ कि जैसा आप लोगों ने कहा कि इस सेक्टर को कैसे हम और अच्छा बना सकते हैं और जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है और जो सपोर्ट है मंत्रालय की ओर से, वो हम जरूर, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके बारे में जो अच्छा हो सकता है हमारी कोशिश होगी। और जैसा हम सब लोग मिलकर के और सरकार को भी इसके बारे में समय समय में आप सुझाव देते रहें, ताकि इन सारी परिस्थितियां जो आज के इस वातावरण में जिस प्रकार का एक माहौल जो हम देख पा रहे हैं, तो इससे कि दुनिया के अंदर इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनसे हमको लड़ना, ये भी हमारा एक लक्ष्य है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की परिस्थिति का जो निर्माण हुआ है हम उससे उभरें, ये हमारा लक्ष्य है। क्योंकि जैसा अभी तक मैंने कहा कि 2 वर्षों में इंडस्ट्री सेक्टर में कहीं ना कहीं हमको लॉसेस भी बहुत हुए, लोग उभर नहीं पाए। तो ये भी एक हमारे चिंता का विषय है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इन सब परिस्थितियों को बड़े गंभीरता से विचार भी किया। विचार करने के साथ साथ उनको उभारने का भी जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, कई तरह के ऐसे निर्णय सरकार ने किया है। मैं चाहता हूं कि देश के हित में, उद्योगों के हित में, खासतौर से स्टील सेक्टर में हम जो बेहतर काम कर सकते हैं, उसमें जहां भी ऐसे अलग अलग डेलीगेशंस, अलग अलग जो ग्रुप के लोग मिलते रहते हैं, तो उनमें से भी हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या अच्छा हो सकता है देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, उस प्रकार का प्रयास हम करते रहते हैं। और इसलिए आज मैं केवल हमारे पीएचडी सीआई के जग जी और उनके पूरे मित्रों को भी आज बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि एक नया इंस्टीट्यूट के साथ में हमारे जी आगे काम करेंगे। यही शुभकामनाओं के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके उद्बोधन के लिए। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारे पास कई प्रश्न श्री रवि गुप्ता जी जो हमारे को चेयर हैं उन्होंने भी दिए, मेरे मित्र श्री अरुणेश भारती जेएसपीएल से आपके भी कुछ प्रश्न हैं, श्री संजय भाटिया जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, और एज पर दी डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मैंने राकेश जी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। और इन क्वेश्चंस के बाद मैं श्री साकेत डालमिया जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना वोट ऑफ थैंक देंगे। तो राकेश जी, चूंकि ये प्रोग्राम सारे लाखों लोग देख रहे हैं और आपके चैनल्स पे हर जगह जा रहा है, आप एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम करते हैं साधना प्लस पर जो आता है, साधना प्लस माइनस, तो मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चंस लें और माननीय मंत्री जी से पूछें। ओवर टू यू राकेश जी। मंत्री जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही, सुनने में सबको बहुत अच्छा लगा। आपने मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, सबका साथ सबका विकास, समग्र विकास, इन सब बातों को याद दिलाया। लेकिन वास्तव में अगर हम सच्चाई के धरातल पर देखें तो बहुत सारी कमियां हैं। और स्टील इंडस्ट्री वालों की प्रॉब्लम क्या है कि वो रो भी नहीं सकते हैं। उसका कारण क्या है? मेरी एक बहुत अच्छे स्टील कंपनी के एक लीडर से बात हुई
उन्होंने कहा कि देखो इस समय केवल 3 बड़ी बड़ी कंपनियां ArcelorMittal, टाटा स्टील और जिंदल स्टील, और इन तीनों के द्वारा कंट्रोल्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। हालांकि वो PSU है और उसको जनता के हित के लिए बनाया गया था, लेकिन वो स्टील अथॉरिटी भी आज इन तीनों के साथ मिलकर के केवल मुनाफा कमाने का काम कर रही है। जो स्टील इनको कंट्रोल्ड रेट पर, कम रेट पर मिलना चाहिए था, आज वो स्टील बहुत हाई रेट पर हो गया है। मैंने उन्हें कहा कि हमने मंत्री जी को बुलाए हुए, आप क्वेश्चन करना। तो कभी हम क्वेश्चन करेंगे तो कल को ये चारों कंपनियां हमें स्टील देना बंद कर देगी, इसलिए हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। ये इनकी हालत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आप एक्सपोर्ट बैन करने के लिए या एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाने के लिए कुछ विचार कर सकते हैं क्या, ताकि इस MSME इंडस्ट्री को बचाया जा सके? हमारी अभी कोशिश रही है कि कम से कम एक्सपोर्ट हो। वैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे इस प्रकार के लोग हैं, इंडस्ट्री है, उनकी अपनी स्वतंत्रता भी है, परंतु हमारे सेक्टर से, खासतौर से जो गवर्नमेंट के PSC से माइनिंग, तो उसके बारे में हमने फैसला भी किया है। और आपने देखा होगा कि हमने एक्सपोर्ट जो हमारे यहाँ जितना हो रहा है, परंतु उसका आधा हिस्सा भी हम डोमेस्टिक मार्केट की तरफ दे रहे हैं। हमने एक्सपोर्ट को भी थोड़ा किया है, जैसे लोगों को अनुभव में आया है। तो ये एक स्थिति, जहाँ तक ड्यूटी का सवाल है, हम जरूर इसके बारे में सरकार के सामने ये विषय आया है, हम उस पर बातचीत करेंगे। मैं अभी हमारे मंत्री जी से भी बातचीत हुई थी पिछले दिनों, मैंने इस विषय को लेकर बातचीत किया, और इसलिए मैंने किया था कि चूंकि एक हमारे डेलीगेशन हमारे पास आया हुआ था, तो इसको लेकर के मैंने कहा कि इस विषय को लेकर के लोगों के मन में एक जो दुविधा है, तो इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए, और निश्चित इस दिशा में हम सोच रहे हैं। देखिए, जो अंतिम निर्णय होगा वो आप सबको ध्यान में आ गए, और ये विषय आगे भी जब भी भविष्य में इस प्रकार का निर्णय होता है, तो परंतु हम सरकार के अंदर इसके बारे में चिंता करते हैं। मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि निकट भविष्य में MSME सेक्टर में जो स्टील कंपनी है, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत मिल सकेगी। योगेश जी एक हमारे दर्शक हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे मेंबर हैं। सर, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं श्री संजय भाटिया जी। एडमिन, may I request him to kindly unmute him? और संजय जी को आप अनम्यूट कर दीजिए। संजय जी, इफ यू कैन काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ सर। हाँ, प्लीज स्पीक। नमस्कार मंत्री जी, आप मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुनकर, और जो भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने कदम उठाए हैं एक स्टील का उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं। पर हमारे सामने जो इश्यूज हैं, जो MSME या SMEs के जो आपने गुप्ता जी ने बोला, तो हमारे सामने सर जो इशू है वो ये है कि आपने एक डिफेक्टिव मटेरियल्स को रोकने के लिए BIS एक BIS मैंडेटरी BIS और गुणवत्ता का जो आप बता रहे थे, तो वो आप एक नोटिफिकेशन लेके आए, और उससे क्या हुआ कि जो मटेरियल अच्छा भी था, जो प्राइम मटेरियल भी था, वो भी आना बंद हो गया सर। तो अब उसमें क्या है कि जो BIS आपने लगाया, तो जिन कंपनीज ने करीबन 8-10 कंपनीज जिन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है, तो आपके BIS अथॉरिटीज के लोग जा नहीं सकते क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शन है, और उनको भी मटेरियल, उनको भी BIS लाइसेंस नहीं मिल रहा है, और आपने उसको लागू कर दिया अभी जुलाई से। सर, मैं टेम्पलेट की बात कर रहा हूं, तो कैसे इंडस्ट्री को मटेरियल मिलेगा? आई थिंक ये हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है जी कि मटेरियल मिल नहीं रहा, और लोकल जो प्रोडक्शन है, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस सर, वेरी मच ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आप पूछे सर। ओके, हाँ, तो सर जो लोकल इंडस्ट्री है
वो हमें ना अवेलेबिलिटी है, हमें अगर अगर हमें 2000 टन माल चाहिए तो हमें वो 500 टन देते हैं और ना टाइम से देते हैं। अब आपने एक PLI की बात करी स्टील इंडस्ट्री के लिए, तो हमारी जो गुजारिश है कि वो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री जो स्टील की है, आप उनके लिए भी PLI स्कीम दीजिए ताकि उनको भी ये चीज फायदा मिल सके। सो ये कुछ ऐसे इशू हैं जो आज इंडस्ट्री फेस कर रही है। हम और भी डिटेल में, पर क्योंकि और दूसरे स्पीकर हैं, मैं ज्यादा इसमें समय नहीं लूंगा। सर, इनका कहना है कि जो टिन प्लेट और टिन फ्री स्टील है उस पर आपने BIS का कंपल्शन कर दिया। ये हालांकि कई साल से ये चीज चल रही थी और 3-3 महीने बाद उसको आप एक्सटेंड कर देते थे कि BIS के बिना भी इंपोर्ट अलाउड है, लेकिन कोविड के दिनों में आपने कंपलसरी कर दिया कि इस पर BIS होगा तभी इंपोर्ट अलाउड होगा। अब BIS कैसे होगा कि यहाँ की BIS की टीम उनकी फैक्ट्री में, मान लो कोई बुल्गारिया से मंगा रहा है, कोई रोमानिया से मंगा रहा है, कोई जर्मनी से मंगा रहा है, तो यहाँ की टीम BIS की वहां जाएगी और उसको BIS सर्टिफिकेशन देगी। अब उसके लिए कोरोना पीरियड चल रहा है, यहाँ से टीम जाएगी नहीं, जा नहीं सकती, और उसके कारण से आपके पास में 12 आवेदन अभी लंबित हैं जिनको के BIS के लिए जिन्होंने अप्लाई किया। अब ना वो BIS मिल रहा है ना इंपोर्ट हो रहा है, उसके कारण से जो ऑलरेडी यहाँ पर आ रहे थे उन्होंने अपने रेट 60% तक बढ़ा दिए सर। और आप देखो 60% अगर रॉ मटेरियल का रेट बढ़ जाएगा तो जो ये टिन पैकेजिंग वाले हैं उनकी तो बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। देखिए, ऐसा बहुत बार का अनुभव आया है कि एक तो जो पेंडिंग्स मामले हैं जिनके किसन्स लगे हुए हैं, एक तो उसका समाधान, और दूसरा कोर्ट के लिए आप लोगों ने जैसा अनुभव किया है और जैसा मार्केट में हम देख पा रहे हैं, तो ये जो स्थिति है इसके लिए हमने इस बात की कोशिश जरूर कर रहे हैं। हमारे MSME सेक्टर के लिए आपको ध्यान होगा, हमने कुछ चीज़ों को उनके पेमेंट से लेकर के रॉ मटेरियल्स, उसकी प्राइस को हमने सुनिश्चित किया है, और यही हमारी कोशिश है कि MSME और हमारे जितने उद्योग हैं इनके बारे में हम जितना चिंता कर सकते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां बढ़ती हैं, ये जरूर है कि हमारे पास डिमांड तो बहुत, पर उसके आधार पर हमारे पास कई बार मटेरियल, और ये जब दूसरी तरफ पे हम जब देखते हैं कि फूड भी हमारे यहाँ जो लोगों को अभी तक है जो बाहर बेचते हैं और उसका रेट का भी सवाल आता है, तो एक इसके बारे में भी हमने आकलन किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बारे में हमने जब भी इस प्रकार की परिस्थिति बनी है तो उसको आकलन हमने किया, और जहाँ संभव हो सकता है उसके बारे में भी हम अभी बातचीत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसका समाधान बहुत जल्दी निकलेगा। और जो लोकल स्तर पर जहाँ परिस्थितियाँ बनी हैं, जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं सेक्टर के अंदर, तो वहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं उसको भी हम थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वास्तव में जो लोगों के लिए जो जेन्युइन ज़रूरतें हैं, खासतौर से इनके फिट्स के लिए, इसके लिए जो आप लोगों ने कहा है कि इसके बारे में हम चिंता जरूर करेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ इस समय कि इसकी जहाँ ज़रूरत है उसको हम जरूर चिंता करेंगे, और बाकी आने वाले समय में बहुत जल्दी इसके बारे में भी मुझे लगता है कि कुछ निर्णय की हम स्थिति में आ जाएंगे, ताकि आम तौर से जो हम उद्योग हैं हमारे MSME सेक्टर के जो हमारी इंडस्ट्री है उसको हम और कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत जल्दी फैसला कुछ सरकार करने वाली है। सर, ये तो कई वर्षों से इंपोर्ट हो रहा था और कोरोना के दिनों में ही आपने BIS की कंपल्शन कर दी, और इस कंपल्शन को किए भी जुलाई में शायद ये कंपल्सरी किया था, 6 महीने के करीब होने को आ गए, और उसके कारण से जो इंपोर्ट कर रहे थे उनका सारा इंपोर्ट बंद हो गया। जो उसके यूजर्स थे उनको यहाँ के मैन्युफैक्चरर से लेना पड़ रहा है जबरदस्ती, और उन्होंने अपने रेट 60% तक बढ़ा दिए। उनकी 7 लाख टन की रिक्वायरमेंट है, जबकि यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल से 5 लाख टन है, तो 2 लाख टन का ये जो गैप है उसके कारण से उन्होंने रेट बढ़ा दिए। सर, ये अगर वास्तव में चिंता है तो इसको तो इमीडिएटली BIS का जो कंपल्शन है वो अगर तुरंत प्रभाव से लिए तो आवश्यक होगा, हम जरूर इसके बारे में विचार करेंगे, क्योंकि अभी इसको एक बार देखना पड़ेगा। तो
बातचीत करके इसका एक समाधान एक रास्ता निकालने का एक प्रयास जरूर करेंगे। हमारे दर्शकों, यहाँ पर उपस्थित एक हमारे माननीय सदस्य हैं, वो कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं। करुणेश भारती, जिंदल स्टील हैं शायद। Good evening, Honorable Minister. I am Arunesh from the Student Power. Good evening, Mr. President. So, sir, thank you very much for your pro-industry initiative, like PLI, rollout of PLI, Gati Shakti, Make in India, DMIC policies and all. And because of that, steel industry is in the strong footing today. But I'm also trying to underline here that few of our old friends, like, Bhushan Steel, the colleagues we are not seeing here, that was the kind of meltdown when, nobody was able to save the steel industry. So some of the less competitive, players was not here. So we are actually talking about the profitability and all those things today. But you have to appreciate that, certain colleagues from the industry is not present here. And we have to take a longer term view about the steel industry. So that's my first point. Second point is that, sir, that we are very competitive. We are very competitive at the factory grade. But our competitiveness erodes once we are reaching to the customer's gate actually. And there are some inherent deficiency in the policy and the way we taxations are being made. So we want that that government should enable by way of policy measures so that we'll be able to compete and there will be a level playing field with the international as well as the domestic supplier. Just to name a few, sir, that coal cess, GST compensation cess, 400 rupees. That is discouraging the uses of domestic coal. And a lot of steel manufacturers, power manufacturers, they are importing coal because of this, GST compensation. Second point is that the royalty. Royalty is a big issue. That is actually, putting the cost up actually. And electricity duty. These are a few of the things. Second point is that, sir, the cost of logistic. So, with a vision of 300 million ton, capacity addition will be happening in favor of the iron ore rich region. So, we have to increase the logistic, availability, logistic linkage. Railway is the main, area. Come to the question, sir, please. Yeah. Come to the question. So my suggestion is that we should be having a review of how we'll be able to come to 300 million ton and what are the enablers in terms of logistic, level playing field, so that we'll be able to compete in the domestic market as well as the international market. Last point is, sir, that you have rolled out the PLI scheme. Out of 110 odd million tons of steel consumption, we have around 10% consumption of structural steel, and we are actually importing a lot of sheet piles, tracksuit and other heavier sections. But in PLI scheme for structural steel, no representation was given, sir. So I would request you to take care of this the next review, sir. Thank you very much. लाई का भी जो विषय आया है, इसमें अभी देखिए इसको हम लोगों ने सजेशंस भी हम लोगों ने मांगा है और जैसे एक बार लाई होगा तो देखेंगे इस पर क्या अच्छा और हो सकता है। परंतु अनेक ऐसे सेक्टर हैं जिसके बारे में डोमेस्टिक मार्केट के बारे में जितना संभव हो सकता है ये एक कोशिश है। और आज जितना जो लोगों की जो जरूरत है उस जरूरत के आधार पर हमारे सामने जो कठिनाइयाँ हैं, एक के जो मैंने प्रीवियस का वो एक अनुभव मुझे आया है और मैं देख पा रहा हूँ पूरे देश भर में जो आज जितनी रिक्वायरमेंट है उससे जो उसकी पूर्ति करना है जितनी जरूरत है, तो वो एक समस्या हमारी है कि जब हम स्टेटों से भी कई बार बातचीत करते हैं उसकी सारी फॉर्मेलिटी, परमिशन, ये सारे विषय आते हैं, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो चाहे माइनिंग का हो, ये एक समस्या है। और इसके लिए चाहे प्राइवेट सेक्टर का विषय हो और चाहे गवर्नमेंट की हमारी चीज हो, जो भी उसकी जो फॉर्मेलिटीज है वो हम सबको ही करना पड़ता है। राज्यों से भी हमने उस लेवल पे बातचीत किया है और मुझे लगता है कि अगर जब इस प्रकार की परिस्थिति अभी चर्चा इस पे चल रही, अगर ये संभव हुआ तो एक बार इसका रास्ता निकाल करके जो जरूरत
की चीज़ें हैं उसको हम प्रायोरिटी से लोगों तक पहुंचाना, खासतौर से इंडस्ट्री सेक्टर को, ये एक ऐसी धारणा अभी बन रही है। मुझे लगता है इसको लेकर के हम जब बढ़ेंगे तो स्वाभाविक इसका रास्ता निकलेगा, ऐसा एक अनुभव आया है। ठीक। मंत्री जी, आप स्टील के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट भी देखते हैं। हमारे एमएसएमई के को चेयर हैं डीपी गोयल जी, यहाँ बैठे हैं, ये क्वेश्चन करना चाहते हैं। आदरणीय मंत्री जी, मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहता, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ रूरल डेवलपमेंट के बारे में। पिछले दिनों कोविड-19 से हमें महसूस हुआ कि ऑक्सीजन की हमारे देश में कितनी कमी है। ऑक्सीजन को रिप्रोड्यूस करने के लिए हम लोग पेड़ लगाते हैं और 1 लाख पेड़, 2 लाख पेड़, 5 लाख पेड़ एक साल में हम लोग लगा देते हैं। क्वेश्चन ये है कि उसमें से कितने पेड़ सर्वाइव करते हैं। तो मेरा ध्यान इस तरफ थोड़ा आकर्षित हुआ कि ये पेड़ सर्वाइव क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार पेड़ लगाने के बाद वो ऐसी भूमि में लगाए जाते हैं जिसका कोई ओनरशिप नहीं होता, ना कोई पानी देता है, ना कोई खाद देता है, ना कोई उसको देखता है। सो आई टुक एन अपॉर्चुनिटी ऑफ विजिटिंग माई विलेज। मैंने गांव के हर घर में फलों का पेड़ लगाया। जब फलों का पेड़ लगाया, क्योंकि गांव में फलों की बहुत शॉर्टेज होती है, फलों की दुकानें नहीं होती हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि 2000 फलों के पेड़ मैं 5 गांवों में अपने गांव के आसपास लगा चुका हूं, जिसमें से 80% से ज़्यादा सर्वाइव करे हैं, जो पिछले 6 से 8 महीने में हमने लगाए हैं। गांव के लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला, किसानों के घरों में जो पेड़ लगे थे। किसानों से मैंने पूछा कि आपकी खेती की पैदावार क्यों नहीं बढ़ती है, तो उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन में जब तक हम पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं तो फसल की उपज अच्छी नहीं आती। पेस्टिसाइड डालते हैं तो ज़मीन को आप ऐसा समझ लीजिए जैसे हमारे कोई शुगर हो जाता है किसी आदमी को, तो बिना शुगर की गोली लिए वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो मैंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से बात की, उनका सॉयल डिपार्टमेंट है, उनके डायरेक्टर से मैं मिला कि इसका क्या समाधान हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, सॉयल टेस्टिंग लैब से लेकर के उस ज़मीन में क्या उगाना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना चाहिए और उसमें ऑर्गेनिक तरीके से कैसे खेती की जानी चाहिए। लेकिन हमारे से ये कोई सिस्टम पूछने आता ही नहीं है। हमारे पास इतने साधन नहीं कि हम जाके गांव-गांव में ये लोगों को बता सकें। 27 नवंबर को मैंने एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया है। मेरा गांव है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गांव मंडारा, जिसमें IARI के सॉयल डिपार्टमेंट ने अपनी मतलब कॉन्सेंट दे दी है। करीबन 400 किसान उस दिन वहाँ इकट्ठा होंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने अप्रोच किया सोनीपत में, तो जो DC हैं मिस्टर ललित सिवाच, ही हैज़ गिवन दिस कॉन्सेंट। मैंने कहा आप अपने ऑफिसर हमें भेजिए, वो खुद भी आएंगे। किसानों को सरकार क्या क्या बेनिफिट देती है किसी किसान भाई को पता ही नहीं है इसके बारे में। जब हमको नहीं पता, उनको कैसे मालूम होगा? वो बेचारे अपना खेत में जाते हैं, घर पे आते हैं, उनके पास तो जानने को कोई साधन है नहीं। तो ये एक कॉन्सेप्ट जब मैंने उनके घरों से उनसे बातचीत की तो मुझे लगा कि इनमें एक अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है और सरकार की मशीनरी भी इस काम में सहयोग देती है। मैं राकेश जी से निवेदन करूंगा कि अगर हो सके तो इस प्रोग्राम को थोड़ा आप इसको हाईलाइट करें, क्योंकि 400 किसान एक जगह इकट्ठा होके उनको खेती के बारे में, ज़मीन के बारे में बताना, एक साल में 2 के बदले 3 या 4 फसल कैसे ली जा सकती हैं, उस फसल की यील्ड कैसे बढ़ाई जा सकती है, पेस्टिसाइड फ्री ज़मीन को कैसे बनाया जा सकता है, वो सारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के सॉयल डिपार्टमेंट के लोग, करीबन 5 साइंटिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वो वहाँ पर अपना योगदान देंगे। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोनीपत जो है वो अपनी टीम को भेजेगा जो किसानों को सरकार की तरफ से दिए जाने बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि इसके बाद ये कैंपेन हम और गाँव में भी आसपास बढ़ाएंगे, जिससे कि इस कार्यक्रम के बारे में उनको अवेयरनेस हो और उनकी हम आमदनी को और उनकी यील्ड को हम बढ़ा सकें। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका जो सुझाव है, आप प्रैक्टिकली आप जो किए हैं या देख पा रहे हैं,
वास्तव में हम लोग रूरल डिपार्टमेंट की ओर से भी यही अभी प्रयास कर रहे हैं कि जो अभी तक हुआ है इसमें नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और हर स्टेट को इसमें हम अगर कोई मॉडल ऐसा हमको कोई स्कीम्स का दिख रहा है, खासतौर से हमारे यहाँ हमने कन्वर्जेंस को भी प्राथमिकता दिया है, जिस सेक्टर को आप कह रहे हैं तो इसको इंडिविजुअल्स के लिए और सामूहिक ग्रुप्स को भी, सरकारी ऐसे संस्थानों को भी हमने ये भी कहा है कि इसको लेकर के थोड़ा लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों में जागरूकता हो। जो भी हम इस प्रकार के आयोजन या कार्यक्रम करते हैं, पौधारोपण प्लांटेशन वगैरह करते हैं, तो वो कम से कम अपनी जवाबदारी से जहाँ भी हो, खेत में, अपने घर है, बाग बगीचे में, तो ये कम से कम सुनिश्चित होना चाहिए, इसके पर लग जाए। ये इस प्रकार का हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं ताकि ये जो आज इसकी ज़रूरत है, खासतौर से पर्यावरण के बारे में जिस प्रकार की चर्चाएं इस समय चल रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये योगदान हो सकता है इसको लेकर के, और हम इसको ज़्यादा और भी प्राथमिकता देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर लास्ट क्वेश्चन हमारे रवि गुप्ता जी स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहेंगे, बस इसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। माननीय मंत्री जी, मैं पिछले 50 साल से इस्पात के व्यापार में हूँ और मैंने बहुत तरह की कंपनी, मतलब स्टील कंपनीज का मैंने देखा है, और आज स्टील कंपनीज की पोजीशन है वो आज तक कभी हिस्ट्री में हुई नहीं, लेकिन उस स्टेज पे पहुंचने के लिए इन स्टील कंपनीज ने बहुत स्ट्रगल किया है। और जितनी भी इवन जो मीडियम लेवल भी कंपनीज थी, जैसे वो भूषण स्टील था, भूषण पावर था, एसआर स्टील थे, वो सारी कंपनीज उस सारी प्रॉब्लम्स को सस्टेन नहीं कर पाई और वो आज नॉन एग्जिस्टेंट हो गई। हमें इन बातों का हम लोग जरूर एप्रिशिएट हमको करना चाहिए। अभी मैं स्पेसिफिक आपसे 2 बातें बोलना चाहूँगा। एक तो देश को चालू दशक के अंत तक 300 MTPA की इस्पात उत्पादन क्षमता तक पहुंचना है। अतिरिक्त क्षमता पर लगभग 10 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। इसके अलावा बड़े उत्पादन का ध्यान रखने के लिए लॉ IS, कोयला, थर्मल, कोकिंग, लॉजिस्टिक, इंफ्रा के मिलान की भी आवश्यकता होगी। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीकों और साधनों पर काम करने के लिए मंथन सत्र आयोजित करने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज यह है कि MMDR अधिनियम में संशोधन और खनिज इस्पात क्षेत्रों में बाजार की शक्तियों के मुक्त खेल के बाद विभिन्न हितधारकों की चिंताओं का ध्यान रखने के लिए इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक नियामक की आवश्यकता है। अगर ये सब करेंगे, जो आज प्राइस की बात हो रही है, प्राइस ऊपर है नीचे है, MSME को प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आज हमको ये भी मालूम है कि आज इंटरनेशनल प्राइसेस जो स्टील के हैं उससे हमारे देश में जो इस्पात का रेट है वो कम से कम 10-15% आज भी कम है। तो हम लोग आज भी सस्ता इस्पात बेच रहे हैं, कंपनीज पैसा कमा रही हैं, तो वो एक, अगर आप कंपनीज को पैसा भी नहीं कमाने देंगे तो आप ये उम्मीद करेंगे कि 2030 में आपकी प्रोडक्शन डबल हो जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इस सबको एक बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि मैं क्योंकि बिजली के क्षेत्र में भी हूँ, तो बहुत सी कंपनियां बिजली में अपनी कॉस्ट को कम नहीं कर पा रही है या करने की तरफ उनका ध्यान नहीं है। सबका ध्यान आयरन ओर की तरफ है, कोकिंग कोल की तरफ है, उसकी तरफ भी ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉस्ट बहुत, मतलब बिजली की कॉस्ट बहुत कम की जा सकती है, जिसकी तरफ आज अभी मतलब उतना ध्यान नहीं गया। जैसा इस समय देश का जो वातावरण है, इसको अगर आप देखेंगे तो आज इतने सारे पुराने अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूं
कि ये सही है कि मैंने राज्यों से जब बातचीत किया इस पावर सेक्टर को लेकर के बहुत सारी परिस्थितियां हैं, और पावर जब अगर हम सस्ता देंगे तो हमारे उद्योगों के लिए लाभकारी होगा। हर स्टेट की अपनी समस्या है। एक तो मैंने इसको लेकर के जब मैंने लगभग देश के 25-30 ऐसे स्टेटों के मिनिस्टर से, वहाँ सेक्रेटरी से जब बातचीत हुई तो एक अनुभव आया कि सबके अपनी समस्याओं का समाधान। तो ये बात सही है कि आपने ग्रिड की, आपने बात किया, और इसको लेकर के कोई इस प्रकार का कोई चिंतन भी होना चाहिए। हमने पिछले समय स्टील सेक्टर को लेकर के एक चिंतन शिविर किए थे, तो इसमें बहुत सारे सजेशंस भी आए। ये भी एक पक्ष है कि पावर को लेकर के भी ऐसा डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये विषय आता है तो राज्यों का विषय ऐसा करके सामान्य तौर से लोग, क्योंकि उनकी जो भी परिस्थितियां हैं, तो एक तो ये भी एक कारण है। इसके कारण कठिनाई उद्योग क्षेत्र को, इसका समाधान होना चाहिए। मैंने हर प्लेटफार्म में कहा है, इसके लिए कोशिश भी मैंने किया है कि इसके बारे में सोचना। जहाँ तक ये जो रॉ मटेरियल्स और बाकी चीज़ों के लिए ये बात सही है कि जो लोगों की एक मोनोपोली है, ये एक है, इसमें सरकार ने कोशिश तो इसमें बहुत किया, और ये जो रेट्स के बारे में, खासतौर से स्टील सेक्टर के बारे में डिरेक्टेड होने के कारण क्या है, इससे जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर जो इसका प्रभाव, उनकी क्या व्यवस्था है उसको लेकर के, और हमारे यहाँ जिस प्रकार की स्थिति है तो नीचे ऊपर तो होते ही है, परंतु ये हमारे नियंत्रण से बाहर रहता है, और इसके कारण है ये परिस्थितियाँ शायद अनुभव में भी आए हैं। तो ये मुझे लगता है कि चिंता का विषय तो है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। सरकार को भी हमने कई बार सरकार के अंदर भी बातचीत हुई है, परंतु उसका समाधान कैसे निकले ये एक नीतिगत विषय है, क्योंकि इसके बारे में मुझे लगता है कि सारे नेशनल स्तर पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि दूसरी जगह की क्या स्थिति है, हमारे यहाँ की जो परिस्थिति है, तो ये कोई ना कोई तरीके से इसका ऐसा सिंह होना चाहिए, कोई आइडियाल हो, ताकि इसका एक रास्ता निकले। ये जो मैं अनुभव कर पाया हूँ, तो मैं कुछ चीज़ों को देखने में ध्यान में आता है कि इस प्रकार के सेक्टर्स के लिए हमारी क्या स्थिति बनेगी दुनिया के सामने, ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। तो इसको लेकर के बड़े बड़े जो हमारे विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र में भी मुझे लगता है कि बातचीत करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी का जब सवाल है, देश का है, देश के भविष्य का है, तो ऐसी चीज़ों पर जरूर बातचीत होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत जो ओपिनियन है, मैं जो इसको समझ पाया। सर, रेगुलेटर को लेके आपका क्या विचार है? क्योंकि अब दोनों सेक्टर जो है, माइनिंग सेक्टर और स्टील सेक्टर, दोनों जो है लिबरलाइजेशन की तरफ चले गए हैं। ठीक है, स्टील को तो हमने 1991 में कर दिया था। अभी 2015 से लेकर 2021 तक जितने भी चेंजेस आए हैं, MMDR अमेंडमेंट एक्ट आए हैं, काफी चेंजेस आ गए और एक तरह से माइनिंग सेक्टर भी स्वतंत्र हो गया है। तो ये होता है कि जिस भी सेक्टर को हम स्वतंत्र करते हैं, उसके लिए चाहे वो टेलीकॉम है, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहाँ एक रेगुलेटर होना चाहिए, ताकि जो ये समस्याएं हैं, जैसे जो हमारे छोटे उद्योग हैं, उनको इस्पात देने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर प्राइस जो है इस लेवल पे पहुंच गया है, या फिर जो भी नीतियां बनानी है या रूल्स रेगुलेशंस जो भी करना है, उसके लिए एक रेगुलेटर का ऑफिस होना चाहिए, जो कि स्वतंत्र रूप से सारी चीजों को देख सके और अपना विचार गवर्नमेंट को जो भी गवर्नमेंट की नीति है उसमें अगर चेंजेस की जरूरत है तो उनको रिकमेंड कर सके। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, और क्योंकि ऐसे कई अनुभव भी आए हैं, इसलिए मैंने भी कहा कि जो देखने में आया है इसके बारे में जरूर एक बार इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है अलग अलग लोगों से। सर, अभी देश में क्या हो रहा है कि यहाँ की लैंड, बैंकों का पैसा, यहाँ की मैन पावर को यूज करके आयरन और निकालते हैं, बाहर जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, वहां से पैलेस बन के किसी तीसरे कंट्री में प्रोडक्ट बनती है और वो फिर इंपोर्ट होकर के इंडिया में आती है। ना यहाँ की मैन पावर को एम्प्लॉयमेंट मिला, ना गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला, और हम समग्र विकास और सबका विकास की जो बात करते हैं सर, वो सिर्फ सपनों में रहती है। देखिए, इसके बारे में ध्यान में आया है, ये जो आपने कहा है कि इसको वाले विषय में मुझे ध्यान में, हमने जो
लोग रेट की जब बात करते हैं और हायर की रेट पे, तो ये जो बना करके जो लोग उपयोग करते हैं, ये भी मुझे लगता है कि ध्यान में आया है और जरूर हम इसके बारे में कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। ये हमारे संज्ञान में है ये विषय। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद, क्योंकि समय की हमारी सीमा है। और इससे पहले कि मैं श्री साकेत डालमिया जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको मैं निमंत्रण दूं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए, हमारे स्मृति चिन्ह जो हमारा पीएचडी का है लौह पुरुष सरदार पटेल, और माननीय मंत्री जी भी हमारे लौह पुरुष हैं मांडला के, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री साकेत डालमिया जी, प्रेसिडेंट मुल्तानी जी, राकेश जी, आप अगर आगे आकर के इस स्मृति चिन्ह को भेंट करें। प्रदीप अग्रवाल जी, अनिल चौधरी जी एंड राकेश गुप्ता जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सौरभ सान्याल जी और हमारे इमीडिएट फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री संजय अग्रवाल जी भी कि आप भी आएं और इस ग्रुप फोटो में आप सम्मिलित हों। अब मैं श्री साकेत डालमिया जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना धन्यवाद प्रस्ताव दें। इस सर समय खिंच गया है, मैं संक्षेप में कह देता हूँ। मेरी हिंदी बहुत पुअर है, so I'll try my best. So first of all, I would like to thank our chief guest, Shri Fagan Singh Kulasthi ji, Honorable Minister of State for Steel and Rural Development, Government of India. Shri Multani ji, our President, PhD CCI. Mr. Sanjeev Agarwal ji, our Vice President. Mr. Anil Chaudhary ji, our Chair, Minerals and Metals Committee. Shri Rakesh Gupta ji, our Chair, Parliamentary Forum. Mr. Ravi Gupta ji, from our Minerals and Metal Committee again. My dear friend, Mr. Pradeep Agarwal ji, Co-Chair, Parliamentary Forum. RS ji, Yogesh ji, Management Committee members, and my dear friends. मैं केवल यही कह सकता हूं सर कि आज आपका आना और इंटरेक्ट करना एक सिंबॉलिक चिन्ह है इस गवर्नमेंट का कि वो इंडस्ट्री के संग इंटरेक्ट करना चाहता है, सुनना चाहता है, और जो उनको इन टोटलिटी सही लगता है उसको वो इनकॉर्पोरेट करना चाहता है अपनी सोच में, अपने पॉलिसी में। सो वेरी बिग थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक हम सब सुन चुके हैं रेगुलेशन, प्रॉफिटियरिंग, इन्फ्लेशनरी, रेवेन्यू शेयरिंग एंड सो मेनी अदर कंसर्न्स। मैं केवल एक ही चीज कहना चाहता हूं सर कि आज के दिन स्टील इंडस्ट्री एक बहुत बढ़िया दौर से निकल रहा है बहुत दिनों बाद। उसके वजह से मिनरल्स का भी जो बिजनेस है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। जिस तरीके से हम सोच रहे हैं कि पोल्यूशन को घटाया जाए अपने गाड़ियों में, मैं समझता हूं कि आज अगर हम तेल उत्पादन करने वाले देशों को देखते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, आज $80-85 पे तेल पहुंच गया है। उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन के पास है। वो सस्ता तेल देता है अपने यहाँ, एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट करता है और उस पैसे से अपने कंट्री को इम्प्रूव करता है। तो मैं समझता हूं सर कि इंडिया इतना मिनरल रिच है कि जिंदगी भर और चाहे हंड्रेड्स ऑफ इयर्स आगे तक हमारे को मिनरल मिलते रहेगा, और हमारे को उससे हटना नहीं चाहिए। हमारे को इंडस्ट्री उसके ऊपर लगाने से डरना नहीं चाहिए। हमारे को एनवायरमेंटली प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए अपने को। तो आज जब स्टील और मिनरल इंडस्ट्री इतना बढ़िया कर रहा है, शायद हम वर्ल्ड के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है फॉर एक्सकवेशन, फॉर क्वेरिंग, जैसे हमारा जितने भी मशीनरी हो, जो भी चीज हम यूज करें वो एनवायरमेंटली सेंसिटिव हो, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, और अपना जो रूरल इंडिया है जहां से ये सब निकल रहा है उस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, और उसका जो कैपिटल कॉस्ट है वो हम इन इंडस्ट्रीज पर इम्पोज करें सर, क्योंकि ये बेस्ट मौका है, वो एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। यही मेरी एक छोटी सी एक एडिशन थी। एंड थैंक यू वंस मोर सर फॉर बीइंग हियर विद अस, एंड थैंक यू वंस मोर सब लोग जो इतने पेशेंटली, थोड़ा सा खिंच गया इस बार, कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम पर खत्म करें। थैंक यू सो मच।